Thank you, Convener, sir. So, ladies and gentlemen, today we have with us one of India's most respected voices in finance and global markets. Now, with 34 years of experience across capital markets, banking, fund management, and structured finance, Mr. Ajay Bagga has built a truly remarkable career. He began his journey with Citibank and went on to hold senior leadership roles with global giants, including Group, GE, Pioneer Funds, Fullerton Funds of Temasek, and Deutsche Bank, where he served as country head and managing director of private wealth management. He also made history as the youngest CEO in the mutual fund industry, leading Kotak in the Kotak Mahindra Asset Management and Lotus India Asset Management. Beyond corporate leadership, Mr. Bagga is an active investor, board member, and former chairman of the Financial Planning Standard Boards of India, the body that awards the globally recognized CFP certification. He is a prolific media contributor with over 6,000 television appearances and he hosts the popular show AB of Global Markets on Zee Business with a viewership of nearly 100 million. And he is also a trustee of the Sri Sri Ravi Shankar Trust, a global NGO present over 180 countries, an alumnus of XLRI Jamshedpur and Hindu College, Delhi University. Mr. Bagga brings rare depth, credibility, and clarity to every conversation. Please join me in giving a warm and enthusiastic welcome to Mr. Ajay Bagga. So, friends, before we request Ajay ji to start sharing his knowledge with us, I have the pleasant task of presenting a memento to him, and I request you to please come forward. I would request Kailash ji and our conveners Sajjan Kanodia and Seema Mehta also to please come forward. I would also request one of our very active members, Mr. Ankush Gupta, to please come forward. Ankush. Ajay ji, the topic that was originally thought of is only in terms of the budget, but I think there are certain events around that, prior and post, both which are very critical. First is, of course, the India-EU trade deals, and then thereafter the India-US trade deal as well. So we would request to cover both of these aspects also as well. The other thing is that I think all of us, we have all been hearing you last year, and progressively on many other occasions as well. I think the concern that everybody has is that over the last 1 year, we all keep on hearing that the market will improve, the FIIs keep on selling, the mutual funds Sahiya principle ensuring that the fund keeps on flowing in, and finally nobody knows where exactly we are on the horizon. So maybe you could help us in terms of maybe navigating this bit of it. The other thing which I wanted to add on to your agenda is that of late there has been a lot of discussions of enabling Indians to invest outside the country also. So maybe if you would, can share certain aspects that not only for the Indian market, but maybe if you could do something outside as well. And the other last point that I would want to add is in terms of, apart from equity market, maybe the commodities market, because that is gold and silver and other commodities are being the most discussed subject. So possibly you could share with us. During the course of the meeting, I have received many messages from the members sitting here, and they have all said, sir, that what we request Baggaji to deal with us is in terms of the sectors where we should be investing, the sectors where we should not be investing. And they have also very clearly said, sir, please do not give us any single inventory or single stock item. Please give us only sectors. Thank you. With this few expectations laid down for you, may I request you to please come forward.
Thank you very much, and Kailash ji, Mahesh ji, Manish ji, and Sanjeev ji. महेश जी ने पहले ही एक महीना पहले ही कर दिया था, जब वो Feb 1 का बजट भी डिसाइड नहीं था। ऐसे सर इस बारी संडे को है, होगा कि नहीं पता नहीं। बोले नहीं, बट आपका फिक्स्ड है। मैं बोला संडे कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे 8 तारीख कर लेंगे। बोले नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं 4th को ही करना। तो आई बुक्ड इट। कल सवेरे जा रहा हूँ। आई हैड सम प्लान्स बट आई मेड श्योर आई चेंज देम एंड आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग नाउ। सो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। नॉर्मली एक आध बारी कोई बोर करके जाता है, फिर कोई बुलाता नहीं है। आप लोग बार बार बुलाते रहते हैं, तो कुछ तो चल रहा है हमारा ठीक। तो काफी संजीव जी ने काफी सब्जेक्ट दिए। मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन नहीं रखा, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं था और इतना ब्रेकिंग इवेंट हो रहा है। कल भी 11 टीवी शोज थे। वो बिकॉज इंडिया ट्रेड डील आ गया, सुबह 7 बजे बैठे तो रात को अर्नब के साथ 10 बजे करके निकले। और इसलिए अच्छा, इधर से आ रहा है, ये बीच में कुछ आ गया। ऐसे सब देख ही रहे हैं, चलाने क्या वो। अच्छा, वो चल रहा है, वो कर। ओके, तो थोड़ा पीछे होके गिर ना जाऊं कहीं, बस 2-4 लोग लगेंगे उठाने में। अच्छा, इतना ही। ओके, तो पहले तो सोना चांदी पहले कर लेते हैं। संजीव जी ने लास्ट में मेंशन किया, बट सबको तो वही जानना है। और परसों कर रहा था गरवारे क्लब में, तो वो मेटल एक्सचेंज वाले थे कोठारी जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया कि अब ज्वेलर्स, किसी ने खरीदा कॉपर, कॉपर खरीदा, 1-1 किलो का बार बना रहे हैं कॉपर्स। हाँ, आप लोग तो सीएस है, नहीं खरीदा होगा, बट 1 किलो का 2,500 से 3,000 रुपए का 1 किलो का वो बिस्किट बना दिया कॉपर का भी। और लोग लेके जा रहे हैं, और पता है कितना बेच दिया उन्होंने लास्ट 3 महीने में? 60 टन्स। एंड ही वाज सेइंग, इफ यू सी द एमसीएक्स प्राइस, अखबार में रोज आता है, ऑनलाइन भी है। ही सेइंग आई एम सेलिंग फॉर 1,400, बट दैट ज्वेलर इज सेलिंग फॉर 2,500, 3,000, कई जगह 3.5, और लोग लेके जा रहे हैं। मैं बोला सर करते क्या? बोले कि रख रहे, लॉकर्स में रख रहे। 60,000 टन कॉपर ले लिया। तो इस तरह से जब चलता है, यू डोंट स्टैंड इन द वे ऑफ इट, यू जस्ट ज्वाइन क्वाइटली और यू एनकैश। चांदी का सुनाऊं कहानी। 6,000 टन लास्ट ईयर इंडियंस ने इंपोर्ट किया चांदी, बिकॉज अपना तो ज्यादा बनता नहीं है। चांदी इज अ बाई प्रोडक्ट, साथ में आप लेड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कर रहे हैं, जिंक कर रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा चांदी निकल आता है उस ओर में से। बट ऐसे चांदी चांदी माइनिंग अपने देश में तो नहीं है। सो 6,000 टन हमने मंगाए। उसमें से 1,000 टन बहुत इंटरेस्टिंग थे। पूछिए क्यों? 5,000 तो है हमारे पास, 1,000 टन इंडियंस खा गए, बर्फी पे लगा लगा के। तो वो पृथ्वीराज कोठारी जी बुलियन डीलर एसोसिएशन हेड थे। मैंने बोला सर रिसाइकल होता है सीवेज वीवेज में कुछ? बोले भाग जाओ, क्या क्वेश्चन तुम पूछते हो। मैं बोला सर 1,000 टन कैसे खा जाते हैं हम? तो बर्फी वगैरह में लगे तो उसको स्क्रेप करके रख लीजिए करिए, कल को क्या पता चांदी कहाँ जाएगा। 1,000 टन खा रहे हैं हम, ये नहीं पता था मुझे। चांदी लोग बेचने गए। अभी उस दिन हम बजट कैफे कर रहे थे, आशु मदान बोले मैं बेच के आया हूं। और पहली बार मुझे ये पता लगा, जब आप वो कॉइन या बर्तन बेचने जाएंगे, सिर्फ 60% ही मिलता है, 40% राख है। ये तो मुझे नहीं पता था। मैं ऐसे ही एमटीएम करके बहुत खुश हो रहा था कि वो दादाजी का वो इतना बड़ा बड़ा परात होता था ना, सारा थाल पड़ा हुआ है, वे करके मैंने बोला इतना बढ़ गया, स्टॉक तो कहीं नहीं गया, एटलीस्ट चांदी बढ़ गया। तो उन्होंने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, बोला 60-70 से ज्यादा नहीं। मैंने बोला पिघाल के देखे,
कि पिघालोगे तो उससे भी कम निकलेगा, जितना मिल रहा है लेके भागो। तो ये चांदी में, फिजिकल चांदी लेने में ये रखिए दिमाग में कि अभी भी BIS नहीं आया है उसमें, और जो आपको मिल रहा है उसके अंदर पता नहीं। तनिष्क शोरूम में आप जाएंगे, देखेंगे कोई ना कोई रो रहा होता है, अपना गोल्ड दिया है। एक बारी मैं शो कर रहा था सबसे बड़े गोल्ड लेंडर्स के साथ, एंड उनके CEO थे, तो बताए मुझे कि सर जो 22 कैरेट बेचा गया है वो 18 से ज्यादा नहीं है, कभी कभी 20 मिल जाता है, और 18-20 जो है वो तो 16 से आगे है नहीं। तो बोला इतने लोगों को धोखा हुआ है, एंड इतना मार्जिन था ज्वेलर्स का कि हम जब लेते हैं गोल्ड लोन के लिए इतना कम निकल के आता है। तो इसीलिए फिजिकल रखिए जरूर, बट अब तो BIS आ गया, और चांदी में भी कोशिश चल रही है कि BIS स्टैंप आ जाए तो एटलीस्ट पता लगेगा। बट ये मुझे नहीं पता था 30-40% राख डलता है उसके अंदर, और क्योंकि बेचा ही नहीं, कभी बेचते ही नहीं ना चांदी और गोल्ड, तो यू गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो गोल्ड फिर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कहाँ जा रहा है गोल्ड? और चांदी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, कॉपर ने भी दिया है। इंडियंस आर बाइंग कॉपर बिस्किट्स। गोल्ड चलेगा, चांदी भी चलेगा। यही है कि इस तरह से बहुत शार्प मूवमेंट देता है, फिर कुछ साल नहीं चलता है। और सबसे बड़े लोग जो हैं बुलियन ट्रेड वाले, उन सबसे पूछा हमने, सर क्या किया जाए? बोले फ्रैंकली वी ऑल्सो डोंट नो, बट डिमांड सप्लाई अगर देखें तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, स्पेशली सिल्वर की। अब उसमें क्या हो जाएगा, अगर सिल्वर इतना बढ़ जाएगा तो पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव है नहीं, जो प्योरेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, 100% करंट वो लेके जा रहा है, कॉपर वगैरह में गिरता जाता है, तो इंटेंसिटी कम होगा। बट कोशिश चल रही है लोगों की कि सिल्वर कम यूज किया जाए, इतना जो बढ़ गया है। यहां से क्या करना है, मैं कहूंगा 10%, 15% पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सोना क्या है, सोना चलता रहेगा, आपको देता रहेगा रिटर्न। सिल्वर है गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स, जब बुल मार्केट है सोने का तब वो बड़ी तेज दौड़ता है और गिरता भी है, जैसे पिछले फ्राइडे को गिरा, मंडे को गिरा, बट आज देखो ट्यूसडे को बढ़ गया, आज फिर से बढ़ गया। तो डिमांड तो है और सप्लाई नहीं है, तो अच्छा है, 10 से 15% पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जो आप सिल्वर फिजिकल होल्ड कर रहे हैं उसका वैल्यू डाउन कर लीजिए। वो मत सोचिएगा कि मेरे पास 10 लाख का चांदी पड़ा है, वो शायद 5-6 लाख का होगा। तो अपने मार्क टू मार्केट में, अपने बैलेंस शीट में भी कम कर सकते हैं, इनकम टैक्स वाले को बता सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड बार्स विल बी ओके सर, व्हाट आर नॉट प्रोसेस्ड। MMTC वाले जो हैं वो ठीक हैं, बट बाकी कॉइन जो हमें मिलते हैं दिवाली पे ऐसे कोई दे जाता है। तो एक तो बड़े महान हस्ती थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नाम नहीं लूंगा, तो उनका हुआ काफी बड़ा बर्थडे, शोभा यात्रा, सब कुछ दिया। मैंने बोला यार बड़े अच्छे हैं, इतना मोटा। वो जाके दिखाया, कहते जी ये जर्मन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वही मैं पूछ रहा था, डॉइच बैंक में हमें 100 साल हुए थे, 1 किलो का मिला था, ऊपर ब्रांड लगा हुआ था, मैंने बड़ा प्राउडली रखा हुआ है। तो वो आशुमदान जी कह रहे थे बेचा, जाके देख ले अंदर क्या है, जर्मन है कि असली है। तो जर्मन बैंक का ही था, तो बट होपफुली जर्मन होते बड़े ऑनेस्ट हैं, तो अगर चांदी का पैसा दिया तो चांदी होगा। वो बिस्किट तो ठीक होगा सर, आई एम होपिंग। मैंने बड़े कस्टमर्स को बिकवाया था 2011 में, जब 60,000 क्रॉस हुआ था, तब बहुत फ्रेंजी था चांदी का, आपको याद होगा। उसके बाद इतने साल कहीं गया ही नहीं, वही प्रॉब्लम वही हो जाती है। मार्क शुड बी ओके सर, मार्क शुड बी ओके। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जो दिए होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं पुराने भी ना, आई थिंक टू होल्ड इट टुगेदर दे हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ ऐश। वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, आप लोगों को ज्ञान होगा। तो कमोडिटी हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना है, अच्छा है। देर आर सम म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग इन चाइना। चाइना का PE 10 चल रहा है, अच्छा है, 4-5%। मैं नहीं करता था बिकॉज
आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बहुत फैमिली मेंबर्स लड़ाई किए 1962 में, तो एंटी चाइना हूँ, बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टमेंट 5% पोर्टफोलियो वी कैन लुक एट चाइना। यूएस में रखना है कि नहीं, बहुत आगे बढ़ा हुआ है पीई, बट वो टॉप 7 कंपनीज का पीई आगे बढ़ा हुआ है। अगर 493 बाकी देखें S&P 500 में, वो इतने नहीं है। तो अगर डाइवर्सिफाइड यूएस है, अच्छा है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल क्या है, ग्लोबल ग्रोथ का आंकड़ा अगर देखें 2025 में कहां से आई ग्लोबल ग्रोथ, 23% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ केम फ्रॉम चाइना। तो अगर $100 पूरा दुनिया बढ़ा, अगर $100 द होल वर्ल्ड वेंट अप, $23 was contributed by Chinese growth. 17 was from India. So we are very lucky we are sitting in India. We get a natural investment in India. And 10% was from US. ये 3 सबसे बड़े हैं। उसके बाद इंडोनेशिया आता है 3.8, टर्की आता है 2.2, जर्मनी वगैरह 1%। फिर एक लंबा टेल है पूरे 200 कंट्रीज का। बट चाइना, यूएस अभी भी, यूएस नंबर 1 इकोनॉमी है, 2-3% भी ग्रो करे, 2-3% ऑफ 32 ट्रिलियन है। हम है 4 ट्रिलियन का 7%, 8%, वो मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना 20% पे 5% ग्रो कर रहा है, 20 ट्रिलियन का 5% ग्रो कर रहा है। तो थोड़ा चाइना खरीद सकते हैं, थोड़ा यूएस रखना चाहिए। कॉन्ट्रेरियन बेट मेरा था कि एआई चलेगा, एआई डूबेगा नहीं, .com वाले लेवल पे नहीं आए, शायद 1-2 साल चल जाएगा। सो इस साल जो बिगनिंग ऑफ द ईयर मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, अखबारों में छपा था, आई सेड 5% कॉन्ट्रेरियन आई कीप इन एआई, यूएसएआई। और उसमें अच्छी बात क्या है, एआई डूबेगा तो भारत में पैसा आएगा। वी डिडंट गेट लास्ट ईयर बिकॉज एआई में गया, कोरिया में गया। कोरिया का जो 80% रिटर्न था 2 कंपनीज की वजह से था, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स, दोनों सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां। तो वहां पैसा बहुत गया और उन्होंने हेवी लिफ्टिंग की। जापान में जो पैसा गया लार्जली जापानीज सेमीकंडक्टर प्लेस। हमारा कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, अब हम शुरू कर रहे हैं, एंड वो अनलिस्टेड हैं सारे, अभी हमारे को स्ट्रेट नहीं मिल रहा कुछ। तो वो टाटा सन्स और इस सब के अंदर बैठा हुआ है, जब निकल के आएगा तब पता लगेगा, करेंगे। तो प्रॉक्सीज में कर सकते हैं, जो प्रॉक्सीज हैं उनके, उसमें करेंगे। तो ये हुआ सेमीकंडक्टर, बाहर का इन्वेस्टमेंट। जापान भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और फिर यूरोप भी अच्छा करेगा। यूरोप इज लार्जली फ्रांस एंड जर्मनी। यूरोप अगर आप खरीद रहे हैं, जर्मनी 4 ट्रिलियन है, तो नियरली जो 27 कंट्रीज हैं उसमें से 20 कंट्री से को मिला के जर्मनी बड़ा है, इतना बड़ा है जर्मनी। हो क्या रहा है दुनिया में, यूएस विल यूएस का स्टिमुलस चल ही रहा है। ट्रम्प क्या क्या कर रहे हैं, हम तो ट्रम्प का खौफनाक चेहरा देखते हैं कि वेपनाइजिंग डॉलर, वेपनाइजिंग ट्रेड, मडुरो को रात में जाके पकड़ लिया कुछ। बट अगर इफ यू सी फ्रॉम द अमेरिकन पर्सपेक्टिव, ट्रम्प वो बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, टैक्स कट्स जारी हैं, दैट्स अ ह्यूज गेन फॉर कॉर्पोरेट्स इन द यूएस, अर्निंग्स बढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट चल रहा है 6.5% पे उनका, सो ही स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी, कंटिन्यूज टू डू दैट। एंड डीरेगुलेशन, जितने केसेस थे, पैसे दो, कोई जेल में भी है, पैसे दो निकल जाता है, खत्म सारा। कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था, मेरा यूएस वीजा चौपट कर दोगे तो। सो Just sorry to interrupt. Vehicle number 3189. Vehicle number 3189. किसकी है, किसका अमाउंट है, this vehicle hydrogen की. First or second? Those who are sitting on the second floor, please pay attention to this, that vehicle number 3189 urgently needs to be delivered. अगर किसी को एस्केप करना है मेरा स्पीच, वो भी सोच के ऐसे चले जाओ, मेरा मेरा, और निकल सके, और पता लगे 50 लोग चले गए, गाड़ी एक एक भी नहीं लेगा।
I was giving option. So Trump ka 3-4 very big things are happening for the US economy. Big, bold, beautiful bill. नॉर्मल स्टिमुलस 6% का वो फिस्कल डेफिसिट चला रहे हैं, $1.5 ट्रिलियन डिफेंस में डाल रहे हैं. आज ही इज गिवन 1,000 ऑर्डर्स फॉर टोमाहाक मिसाइल्स टू रेथियन. सो ये सब चल रहा है ट्रम्प का. यूएस इकोनॉमी बुलंद रहेगी. रिसेशन आते नहीं दिख रहा यूएस में. एवरीवन इज सेइंग डुबा देगा, ये होगा. इतना स्टिमुलस जा रहा है, वो रेड हॉट चलेगा. अभी इतना इस साल तो नहीं लग रहा. चाइना देखें, चाइना प्रॉपर्टी डूबा हुआ है 4-5 साल से. डिस्पाइट दैट दे आर ग्रोइंग एट 4-5%. देयर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग डिस्पाइट लूजिंग देयर बिगेस्ट मार्केट लाइक यूएस. वो ग्वाटेमाला में छाप लेते हैं. देयर आर 20 कंट्रीज वेयर ट्रम्प हैज गिवन 0 टैरिफ्स. सो चाइना ने हर उन 20 कंट्रीज में चाइनीज फर्म्स हैव गॉन. जॉर्डन हो गया, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सैल्वाडोर. अब जो कंट्री 0% पे है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो उन सब पे वो जाके डाल रहे हैं. तो चाइना का एक स्टिमुलस आएगा उनके लूनर ईयर के बाद. वी एक्सपेक्ट अराउंड मार्च अप्रैल. सो चाइना शुड कंटिन्यू टू डू वेल. जापान, देयर इज एन इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन करी. ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है, और 8th को इलेक्शन है. जो पोल्स आ रहे हैं, शी इज लीडिंग. तो लैंडस्लाइड विक्ट्री लग रही है उनकी. शी इज प्रो स्टिमुलस, प्रो फिस्कल डेफिसिट, प्रो स्टिमुलस. सो एबेनॉमिक्स जो था वही वापस लेके आएंगी. ग्रोथ के लिए वो अग्रसर हैं. तो जापान विल ऑल्सो डू वेल. EU में जर्मनी इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग. दैट्स ऑल दैट काउंट्स. फ्रांस के पास ज्यादा फिस्कल स्पेस नहीं है, बट जर्मनी was very moderate, very conservative. They are running now big stimulus. All are investing in defense. So Trump ने जो बोला है कि 2% GDP आप डिफेंस में डालिए, it is having a big impact. Overall renewables हो, डिफेंस हो, यूरोप भी अच्छा करेगा. तो ओवरऑल दुनिया भर में हम देख रहे हैं स्टिमुलस है. दुनिया भर में प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स जरूर आ रही हैं, बट ये याद रखना है टोटल मैन्युफैक्चर का 21% ही कहीं और जाता है. जहां बनता है उससे कहीं और जाता है. तो 4/5 तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी $105 ट्रिलियन जितना उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, 4/5 तो उधर ही लोकली कंज्यूम हो रहा है. तो ये जो शोर मचा रहता है ट्रेड पे, इतना भयंकर नहीं है स्टॉक मार्केट्स के लिए. ये सोच के चलना. ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं भी नहीं बताता हूँ. आज थोड़ा मेरा दिल आ गया. आप लोग गए नहीं गाड़ी लेके, तो बिना इनके के तो अपने नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहा हूं. तो अब बात आई इंडिया की. तो ये ग्लोबल हमने कर लिया, मैक्रो कर लिया. स्टिमुलस आ रहा है, अच्छा साल है, कोई खराब साल नहीं है. एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है. वो पिछले 25 साल से कह रहे हैं World War III आया क्या आया. तो अब पता नहीं, आ भी गया तो इट वोंट मैटर टू अस, नहीं आया तो कर लेते हैं इन्वेस्ट. तो इंडिया में वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के सेम गवर्नमेंट चल रही है, 11 साल हो गए. दूसरा, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, स्पेशली आफ्टर विनिंग बिहार, दिस गवर्नमेंट इज मच स्ट्रॉन्गर देन 240 सीट्स जो लेके आए थे. उससे काफी ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उससे बढ़ गया है. उससे क्या होता है कि दे कैन टेक सम टफ कॉल्स एंड द लॉन्जिविटी इज देयर. कि 2029 तो कहीं नहीं गया. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अभी नजरअंदाज किया जा रहा है. पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर दैट, बट दैट इज वेरी मच देयर. ये डॉक्टर से भी गंदी राइटिंग है मेरी. हाँ, नहीं नहीं, वो इसमें भी डाल दो तो कुछ नहीं दिखेगा. मैं बैठे बैठे सोच रहा था कुछ. Overall, why India has underperformed. September 2024 से now, we have not hit that all-time high again. एक आध दिन intraday में आ गए, फिर से नीचे आ गए. So we have not given any returns for the last now 16 months.
वेरियस रीजंस। एक तो स्लो डाउन आया नेशनल इलेक्शंस के कारण। लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैड स्पोकन कि वो द इंफ्रा स्पेंड रियली वेंट डाउन। इट fell dramatically by about 90%। बिटवीन मार्च एंड जुलाई तो बिल्कुल गवर्नमेंट का स्पेंड कम हो गया। नई सरकार बनी जुलाई में, जून में आई, जुलाई तक शुरू हुआ, होश संभाला, इंटरिम बजट आया, बाय सितंबर वी स्टार्टेड कैचिंग अप, बट एक साल निकल गया उसमें। अब क्या है, लास्ट ईयर गुड वर्क हैज हैपेंड, बट उस टाइम में वी सॉ द कॉर्पोरेट अर्निंग स्टार्टिंग टू स्टॉल। अब इनकम टैक्स कट कर दिया, जीएसटी कट कर दिया, आरबीआई ने आके इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। सो थ्री huge stimuluses have gone into the economy. Why are we still not doing well? On a macro level, we are okay. 10% ग्रो करना चाहिए था नॉमिनल, 8.5 8.7 था लास्ट क्वार्टर। इस क्वार्टर और भी अच्छा आना चाहिए। जो पीएमआई के नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। 57 58 का पीएमआई आ रहा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। जीएसटी का इम्पैक्ट शायद दिख रहा है, आरबीआई का इम्पैक्ट 9 महीने बाद आता है। तो रेट आज काटते हैं, 9-10 महीने बाद ट्रांसमिट होता है। आई थिंक वो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। विल द मार्केट डू वेल? आई फ्रैंकली डोंट नो। एंड इफ यू आस्क माई गट, जैसे ये ट्रेड डील के बाद भागा, 3-4 ट्रिगर हैं, अगर ये 3-4 ट्रिगर आए तो एकदम से भागेगा, नहीं तो विल बी लाइक दिस ओनली। एफआईज क्यों लौट के आएंगे? जब आपका रुपया थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाएगा, 14-15% आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स होगा, या मार्केट बहुत गिरा होगा। गिरने हम देते नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक डाले जा रहे हैं। पिछले साल भी 7.5 लाख डाल दिए हमने। अब प्रमोटर बेच के गया 1.5 लाख करोड़, पी फंड 2 लाख करोड़ बेच के गया। जिस दिन ओएफएस होता है, एक ही देश है हम दुनिया में, हम अगले दिन खरीद लेते हैं जाके। अरे प्रमोटर भाग रहा है कंपनी छोड़ के, हम जाके ले लेते हैं। तो उससे क्या हो गया, वी हैव गिवन अ वेरी स्मूथ एग्जिट टू ऑल हु वांटेड टू टेक। जिसको ले जाना है ले जाओ। हम तो विकसित भारत हैं 2047, हम डटे रहेंगे। वी हैव गिवन द थिंग। वही चलेगा क्या इस साल? पैटर्न्स चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है पैटर्न टूटते हैं। वो पैटर्न कब टूटेगा? एक ये ट्रेड डील। सो ट्रेड डील में ये देखना है, ईयू तो बेचारे संत हैं सारे, वो पीछे से छुरा मारते, सामने से नहीं। तो वो तो डील हो गई, मदर ऑफ डील तो हो गई, माँ ताल रख लेगी, वो अच्छा हो जाएगा। चाइना खा रहा है हमें अंदर से, हमारे पास कुछ नहीं है चाइना को देने को। 5 ट्रिलियन हम चाइना को भेजते हैं, वो हमें 100 ट्रिलियन भेजता है। हम डिंडोरे पीट रहे हैं जी, हमने $23 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स भेज दिया। उस इलेक्ट्रॉनिक्स में अंदर देखो क्या है, 20% हमारा है वैल्यू एड, 80% चाइनीज है। तो वो जो 100 बिलियन चाइना का आ रहा है, फिजिकल ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है 100 का, उधर तो कोई निजात नहीं है। वो बनने नहीं वाला है। अगले 8-10 साल तो we'll have to face that. So वो गवर्नमेंट इज अवेयर, we'll have to see। यूएस का क्या प्रॉब्लम है कि ट्रम्प जिस साइड ऑफ द बेड उठेगा उस दिन कुछ कर देगा। तो अगर आपका मार्केट इतना विचलित है ट्रम्प से, जैसे ये भागा कल मार्केट 2.5-3%, फिर बोला अरे यार पीछे मुड़ के देखा कुछ है ही नहीं, कोई डिटेल्स नहीं है। मोदी जी यहाँ कह रहे हैं ट्रम्प महान, बट कुछ अंदर नहीं। ट्रम्प ने पूरी लिस्ट दे दी, वो तो हम करेंगे नहीं, ना रशियन हम छोड़ेंगे, ना हम उसको 0% पे एग्रीकल्चर लाने देंगे। तो मार्केट ने बोला भाग लो पहले, फिर देखा ये तो दोनों, जो 2 प्यादे थे वो इस तरफ भाग गए, मार्केट ऐसे चढ़ गया, फिर रुक गया। आज थोड़ा ठहराव आया, आज तो आईटी का भी हो गया, वो भी बात करता हूँ एआई की। तो इसमें हुआ क्या है कि ट्रेड डील तो होने वाली थी हमारी, फिर ये इंडिया पाकिस्तान, इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। हमने सच बोला, हमने बोला तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है, पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई थी हमारी बॉम्बिंग से, उन्होंने आके मांगा, तुमने बोला रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज इनको हेल्प कर दो, तुमने कोई बीच बिचाव नहीं किया। बट ये बोलता गया, हम चुप रहे, तो ये डील हो गई होती, नहीं तो वो पनिशमेंट मोड में आ गया।
एक आपको दूंगा उदाहरण, ऐसे बहुत मैं टीवी पे देता हूं। 63 ट्रिलियन है हमारा रशिया के साथ ट्रेड, इंडिया यूएस ट्रेड, $63 बिलियन, एंड चाइनीज ट्रेड विद रशिया इज $245 बिलियन। चाइना 4 गुना ट्रेड करता है रशिया से। बट ये हर जगह इंडिया के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ है, चाइना के ऊपर नहीं, क्योंकि चाइना को जिस दिन वो बोलता है चाइना के पास इतने लीवर है, जी जिनपिंग कहता है अच्छा ये बंद कर दूं कि ये बंद कर दूं, अब तो चला ले अपना ऑटो, तो चला ले अपनी मिसाइलें, सब कुछ तो मेरे पास ही पड़ा है। तो हमें टारगेट किया गया। ईरान अगर आप देखें, ईरान के साथ ट्रेड जो है चाइना 26% करता है, टोटल ट्रेड ऑफ ईरान, चाइना इज 26%। यूरोपियन यूनियन वेरी इंटरेस्टिंग 5.6%, इंडिया इज 2%। बट चांटे मारने आते हैं तो इंडिया को साइड में ले जाके मुर्गा बना देते हैं कि तुमने ईरान के साथ किया। 26 जो चाइना कर रहा है कोई नहीं बोल रहा है, ईयू जो खुद 5% उठा रहा है, दे डोंट से एनीथिंग। सो यही जयशंकर ने जाके जब उनको सुनाया अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए 1 साल हमारा हो गया। अब आ रहे हैं धीरे धीरे। ईयू वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू, 15-16 साल के बाद वी गॉट दिस ईयू डन। मेरी सोच यह है यार कि खोल दो, कुछ नहीं होने वाला। टेस्ला आए थे, 300 टेस्ला वो लेके आया था 70% ड्यूटी पे, 227 बिके हैं। उतने 227 तो ये लैम्बोर्गिनी और ये सब 4-4-5 करोड़ वाले जो घूम रहे होते हैं वही खरीद लेते हैं 100%, 110% ड्यूटीज बेच के। किसी ने नहीं खरीदा 227। खोल दो, आने दो। यूएस का वीट क्या इधर वाजिब रहेगा? आप वो मक्का खाएंगे जीएम वाला, उसमें लिखा होगा बड़ा बड़ा स्कल हम बना के देंगे, जैसे सिगरेट के ऊपर देते हैं ना, कि दिस कॉजेज डेथ, ये भी नहीं कि इट माइट लीड टू। तो वो जीएम वाला कौन लेगा? उनका दूध आएगा क्या? अमूल हमारा शुरू हो गया उधर, अमूल ने खोल लिया यूएस का ऑपरेशन। तो हम डरते भी ज्यादा है। खोल देना चाहिए, आओ जो दे सकते हो दो, कुछ नहीं होने वाला। हम वी आर सो, वही गाड़ी हम 30 इयर्स चलाते हैं जो उधर स्क्रैप हो जाती है। जो वो जितना दम हम लगाते हैं वो टूथपेस्ट पे, वो टूथब्रश को ऐसे रख के फ्लैट करके, अगर पूरा देश उस हौसले से काम करता, आज हमारा जीडीपी $10 ट्रिलियन होता। जितना वो एक टूथपेस्ट से हम उसकी जान निकाल के आखिरी टूथपेस्ट निकालते। कुछ नहीं होने वाला, आने दो। वी आर रियली ओवर एस्टिमेटिंग देयर स्ट्रेंथ, अंडर एस्टिमेटिंग आवर रेजिलियंस। तो एनीवे कुछ अब सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, बट दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ इट। कोरिया बेचारा गया, जुलाई में साइन किया, अक्टूबर में बोला हाँ मैं करूंगा, आपको 350 बिलियन दूंगा। फिर उसके पार्लियामेंट ने बोला मैं क्यों दूं 350 बिलियन, एंड उसमें लिखा है कि ऑन ट्रम्प्स डायरेक्शन इट विल बी डन। तो तो अभी उठ गया, बोला मैं 100% डाल दूंगा। उसका कॉमर्स सेक्रेटरी कहता मैं 25% डाल दूंगा। तो आप बेचारे दोनों बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिशन वाले कि कैसे करें। जापान ने बोल दिया ठीक है 750 बिलियन, चलो लिखने में क्या है, ले लो। अब वो घर आया, प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चली गई, अब ये मैडम आई है। उनको सबको पता है ये ट्रम्प तो हमारे को बचाने नहीं आएगा, या पुतिन हो या जी जिनपिंग हो, ट्रम्प नहीं आने वाला है। तो सब अब डिफेंस में खर्चा करते जा रहे हैं। बट यही हमारे साथ भी होने वाला है। 18% और जीरो का जब आएगा, उसमें क्या फाइन प्रिंट आता है। और कुछ हुआ भी तो कनाडा मेक्सिको सबसे बड़े उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। नैफ्टा था जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने पास किया था। ट्रम्प इन हिज फर्स्ट टर्म ही सेड नैफ्टा खराब है, वो अपना ले आया। ठीक है, सो ट्रम्प का यूएस एमसीए। टर्म 2 में ट्रम्प आता है, ये किस गधे ने लिखा है? बोले सर आपने ही साइन किया था, निकाल दो। नहीं मानेंगे। तुम ड्रग्स देते हो, तुम ये करते हो। वेनेजुएला को बोला तुम ड्रग्स देते हो, वेनेजुएला से ड्रग आता ही नहीं है, कोलंबिया से आता है, उसके पास है ही नहीं, वो बनाता नहीं है ड्रग्स। उसको पकड़ के ले आए, बंदी बना दिया। तो बोला नहीं ये मना कर दो।
Canada, Mexico, सब. तो you think he will follow what he signs also? There is no sanctity. तो ये मार्केट को अभी समझाना है भैया, हर ट्रम्प ट्रुथ सोशल ट्वीट पे आप रिएक्ट ना करें. ये तो अभी दिस इज द रियलिटी. तो ओवर टाइम मार्केट विल ऑल्सो स्टार्ट फिगरिंग आउट कि यही है. और 3 साल और तो है ट्रम्प, उसके बाद अपने को राजा घोषित कर ले तो बड़ी बात नहीं है. अभी भी वो कह रहा है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट. अभी हर स्टेट में है इलेक्शन कमीशन जो बनाता है. इज ऑलरेडी सेड दे शुड बी अ फेडरल जॉब. एंड एक दो बारी बोला है कि व्हाई डू वी इवन हैव इलेक्शंस इन द यूएस. He has actually said it. And उसकी जो वो प्रेस सेक्रेटरी आती है रोज रात को, she said कि नहीं नहीं, he was joking. ऐसे डेमोक्रेट कैसे जोक करता है कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, बट करता है. तो ये माहौल है. ये आपको मार्केट चांस देता रहेगा. कैलाश जी भी अभी कह रहे थे, स्ट्रेट क्वेश्चन तो आपने यही पूछना, पैसा लगाना है कि नहीं. बगा साहब ये सब छोड़ दो, आप तो बातें ही करते रहेंगे. तो वो आपकी स्थिति, आपका जो निजी सोच है वो देख के लगाइए. सेक्टर्स क्या चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुलंद है, 50 लाख करोड़ हमने डाल दिए हैं. ये है कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत है, करप्शन बहुत है. तो ये नहीं है कि 50 लाख करोड़ एक्चुअली गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में. काफी कुछ इधर उधर हो गया है, 20 से 30% उसका. बट फिर भी काफी बड़ा हिस्सा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में. बॉम्बे हम बेनिफिशियरीज रहे हैं. ये और बात है, हर एक सड़क हमारी खोद देते हैं हर साल, तो वी डोंट नोटिस इट. बट कोस्टल वोस्टल ये सब बन गया है, तो अच्छा हो गया. एक और एयरपोर्ट भी आ गया है, अभी तीसरा एयरपोर्ट बात कर रहे हैं. तो कनेक्टेड हो ना हो, एयरपोर्ट तो है. वो बिल्कुल साउथ बॉम्बे से मेरी जान निकलती है कि वो फ्लाइट आती है, मैं देखता हूँ बॉम्ब ही है ना कहीं, NAM या वो NMA जो है, वो फ्लाइट NMIA. नहीं नहीं, वो 3 वर्ड आते हैं ना, बॉम्ब टू BLR फॉर बैंगलोर. तो वो मैं देखता रहता हूँ यार, कहीं गलती से बुक कर दिया तो 4 घंटे लगाएंगे पहुंचने में. वो भी कई लोग तो कार्गो टर्मिनल चले गए क्योंकि साइनेज भी नहीं था, कार्गो में ले गए उनको बाहर. सो इंफ्रा अच्छा करेगा. बैंकिंग एंड NBFC अच्छा करना चाहिए. अभी थोड़ा गिरा क्योंकि गवर्नमेंट का बोरोइंग काफी हाई है, तो नेट बोरोइंग आया नियरली सिमिलर. बट जब फाइन प्रिंट पड़ा 1.3 ट्रिलियन, 1,30,000 करोड़ एक्स्ट्रा वो ट्रेजरी बोरोइंग में करेंगे. सो लेस देन 1 ईयर, तो उससे मार्केट थोड़ा हिला. और हमने देखा NBFCs और बैंक्स थोड़ा करेक्शन था. बट एंड ऑफ द डे ग्रोथ है, मैक्रो है, उसको फंड कौन करेगा, बैंक्स और NBFC करेंगे. तो यू आर ओके देयर. व्हाट एल्स, टेलीकॉम तो रही, अब डेढ़ डेढ़ कंपनियां रह गई हैं. टेलीकॉम विल डू वेल, defense will do well, railways will do well. You have to catch the right companies. Pharma will continue to do well. What will not do well was also a question. Very tough. Consumption इतना रिकवरी नहीं है, चाहे वैल्यूएशन नीचे आते रहे हैं, बट अर्बन कंजम्पशन नहीं बढ़ा है. उसको बढ़ाना है, और तो वो देखना पड़ेगा. और क्या बाकी, IT, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. IT, अब AI क्या IT को खा जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन ना. किसी को नहीं पता. बट AI में अब क्या हो रहा है कि दे आर एबल टू डू द जूनियर लेवल वर्क, काफी अब AI के थ्रू हो जाता है. एंड ये गूगल हो, ये सब हो, इंटरनली भी दे आर ऑल यूजिंग दैट. तो वो एंट्री लेवल जॉब्स, एक नेगेटिवली देखें तो यू डोंट नीड सो मेनी पीपल. पॉजिटिवली देखें तो 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ योर इंजीनियर is as good as somebody with 15 years training, because AI will do a lot of the heavy lifting. So productivity बढ़ेगी. When I speak to the IT companies, they are saying we are the ones who will make the end use application. So we are not phased. आने दो AI को, इसको जब implement करना होगा
इसको जब चलाना होगा, कीपिंग द लाइट्स ऑन, we are the ones who will do. So these are very senior people from IT who see much further. 20-30 साल आगे जो देखते हैं, वो कह रहे हैं इतना घबराने की बात नहीं है, बट फ्रैंकली जितना पैसा जा रहा है उतना रिटर्न नहीं आएगा। तो अभी जैसे डेटा सेंटर हम सब खरीदने लग गए हैं, बट टू माय माइंड अभी ठीक है, अभी खरीद लीजिए, अर्ली डेज है, और वो टैक्स कंसेशन भी दे दिया, बट ये एयरलाइन जैसा लगता है मुझे डेटा सेंटर। एयरलाइन से भी खराब, वो जहाज तो हमें 30-40 साल चलाते हैं, च्युइंगम लगा लगा के वही जहाज में उड़ाते हैं हमें। तो डेटा सेंटर में क्या है, 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑब्सोलेसेंस इतना है। वी यूज टू लैंड, एक लीजिंग कंपनी में चलाता था, एंड सर्वर वगैरह सब कंपनीज के सर्वर हम फंड करते थे, वो किलो के हिसाब से बिकते थे, जितना प्लास्टिक जितना, वो खत्म 3 साल में, रिटर्न ऑफ। सो वो जो है डेटा सेंटर जो करेगा, मुझे तो लगता है वेरी हैवी कैपेक्स विद वेरी लो रिटर्न्स ये होने वाला है, एंड एक्सेस आएगा। अभी तो शुरुआत है, तो अभी कर लीजिए, एंड इफ यू आर लकी, जैसे वॉरेन बफेट कहता है ना कि मेरे फादर जब थे 1920 में इन्वेस्टर, तो 2000 कंपनियां थी, 2000 ऑटो कंपनीज वर देयर इन द यूएस, और 3 रह गई एंड में। तो इफ यू आर लकी कि वो 3 आप पकड़ लें तो ठीक है, पर डेटा सेंटर वाले 3-4 ही हैं, नहीं तो जो भी देश चला रहे हैं दोस्त ग्रुप्स में डाल दो, वो हर आदमी जाएगा ही डेटा सेंटर में। तो टॉप 4-5 जो है छोड़ेंगे तो नहीं, बट वेरी हैवी कैपेक्स एंड विद नॉट इनफ कमिंग बैक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। ये सोचिए, पिछले साल अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $400 बिलियन से ज्यादा डला, एंड रेवेन्यू 20 बिलियन का भी नहीं आया, और विजिबिलिटी भी नहीं आई। ये नहीं कि 20 अब 500 होने वाला है इस साल, वो विजिबिलिटी भी नहीं है। ओपन एआई वाले ने की सीएफओ की थी, आई ट्वीटेड अबाउट इट मे बी 10 days बैक, वेरी नाइस ब्लॉग शी रोट। शी एक्चुअली गेव द मॉडल, क्योंकि मॉडल नहीं हमें समझ आ रहा था, हर आदमी यही पूछ रहा था कितने खर्चे पे कितना आपका रेवेन्यू बनता है। तो वो अब मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक गलत नहीं बोलूंगा, बाद में आपको भेज देता हूं फिर आप, हाँ, मैं वो तैयारी नहीं की थी आज के लिए। सो ओवरऑल इट विल बी वेरी हैवी कैपेक्स विद क्वेश्चनेबल रेवेन्यू, बट इट विल इनोवेशन के कारण इट्स गोइंग टू डिसरप्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। सो if you can catch the right, you are very good. If you can't, then buy the market, buy Max 7 ETFs हैं US में, कुछ कुछ हैं, you can just buy all the AI players and just wait for the shakeout to happen. Indian IT totally unloved, and they kept sleeping. जो कैश था, बायबैक और डिविडेंड्स की जगह, दे शुड हैव बीन बाइंग कंपनीज, वो नहीं किया। विशाल सिक्का ने खरीद के, ही हैड अ स्टेक इन ओपन एआई, और इन्होंने बिकवा दिया कि देखो क्या खराब था। जब उसको निकाला, एक्चुअली दीज गाइज आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि देखो हमारे जो कॉम्पिटिटर ऐसा बना रहा है विच विल ईट आवर लंच, ही वाज फंडिंग देम, एंड दे सोल्ड दैट स्टेक ऑफ। जो 90 घंटे बात करते हैं ना कि काम किया करो 90 घंटे, वो अंकल जी ने बिकवा दिया। सो ये तो गलती हुई है, बट अगेन 50-60 ऑपरेटिंग मार्जिन पे बैठे हैं, नेट मार्जिन 20% पे बैठे हैं, चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, और लगेंगे हमारे लोग तो लगेंगे। अभी लग रहा है कि हो जाएगा, कल को बदल जाए तो वी डोंट नो। अभी इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो नेक्स्ट चॉइस इंटरनेशनल विल टेल यू, सेटिंग यू अप। Because frankly, I don't like this market. I think still we are overvalued. And हम जो ये ढिंढोरा पीटने की आदत हो गई है ना, करना इतना, वो हम स्कूल में हम बोलते थे केल्विन स्केल, तो 0 डिग्रीज पे है, उसको 273 केल्विन होता था ना,
तो वो काम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, बट बोलना 273 केल्विन है। तो वो हमें बंद करना है। दैट वी हैव टू स्टॉप। वी आर गेटिंग हेटेड द वर्ल्ड ओवर। नहीं तो एवरीवन यूज्ड टू लव इंडियंस। आज आप अमेरिका में देखें, अब वानखेड़े स्टेडियम में आ जाए कल को फुल पेज एड, ऑल बांग्लादेशीज कम टू वानखेड़े स्टेडियम, मोहम्मद यूनुस विल एड्रेस यू। ठीक है। और आप देख रहे हैं टीवी पे, तो फिट ही नहीं आएंगे। 15 करोड़ बांग्लादेशी हैं इंडिया में, बट थोड़े आ जाएंगे, भर जाएगा वानखेड़े, और सब मोहम्मद यूनुस यूनुस कर रहे हैं। हाउ विल यू फील? मेक्सिको वाली कभी जाके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नहीं कहती मेक्सिको मेक्सिको, क्या नाम, क्लॉडिया क्लॉडिया। मेक्सिकन ज्यादा भरे हुए हैं यूएस में हमारे से। हमने ऐसे कर दिया, वी हैव गॉट नोटिस्ड कि यार दीज आर वेरी एफ्लुएंट, सारे डॉक्टर इंडियन है, सारे आईटी वाले इंडियन है, इतना सिलिकॉन वैली, हर दूसरा आदमी इंडियन है। ये तो हमारा देश को बर्बाद, इतने नंबर नहीं है हमारे, वी आर नॉट इवन 1%। फिर हम कहते हैं जी सुब्रमण्यम स्वामी, अपना कार्तिक जी की स्टैचू बनाएंगे। ठीक है, बनाओ, मिडल ऑफ यूएस में। वो जाके एड्स निकालते हैं, दिस स्टैचू इज टॉलर देन स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो सारे कू क्लक्स क्लैन वाले पीछे पड़ गए, कौन हिंदू है बताओ, कौन इंडियन है, इनको हम ठीक करते हैं। हमने हाथ जोड़े, भैया करना है चुपचाप कर लो। तुम्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भगवान को क्यों करना है कंपेयर? छोड़ दो उनकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 200 साल पुरानी है। दीज आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग, एंड as a result you don't even get investments. It has a carry through, it has a sentimental effect. We should see that. Not very optimistic about this year. Mathematically we should catch up. Normally इतने टाइम हम जब अंडर परफॉर्म करते हैं, और पिछले साल तो भयंकर अंडर परफॉर्मेंस किया, रुपया भी गिर गया, मार्केट भी नहीं दिया, और ईएम 25% भाग गया डॉलर टर्म्स में। बहुत भयंकर अंडर परफॉर्मेंस किया। नॉर्मली वी कैच अप, तो कायदे से वी शुड कैच अप दिस ईयर एंड डू वेल। बट क्या होता है जब वो लूजिंग की आदत हो जाती है, यू कीप लूजिंग मैचेस, वही विनिंग वेज में यू कीप विनिंग मैचेस। तो वो एक कैटलिस्ट की तलाश है। ये मदर डील फादर डील हो गई, ये अच्छा है, अभी ये हो जाए, निपट जाए, अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 14-15% दिखने लग जाए, अच्छा रहेगा। उससे 3 महीने पहले मार्केट भागने लग जाएगा, पता लग जाएगा। क्या गाड़ी छूट जाएगी अभी पैसे नहीं डाले? कुछ ऐसा नहीं है। तो एसेट एलोकेशन देखिए, आराम से डालेंगे, जो हम करते रहे हैं पिछले साल भी, आराम से डालेंगे। कोई ऐसी मुझे होड़ नहीं दिख रही कि बहुत तोड़फोड़ होने वाली है, दुनिया खत्म हो रही है और इंडिया ही चलेगा, ऐसा नहीं है। विल डू बेटर। हमारे मैक्रो और हमारे मार्केट में बहुत फासला आ गया है। ये हो जाता है एट टाइम्स, economies do very badly but markets do very well. Same way, economies do very well but market is not, because market is forward discounting mechanism. It is as complex as monsoon. You can't understand it. Even though algos think they understand it, it's too complex. So market has seen it coming, the collective market, not you and I, so we can't see. So that will come. Questions later. Let me just finish. You can ask Choice the questions. I'm just setting him up. So I would say go slowly, no rush is my honest opinion. Though mathematically, by history, we should be catching up now. But there are enough stumbling blocks that come in. And Trump, nobody's giving you a free lunch. That we have to be sure. We keep talking China +1. China will work very hard to ensure you don't become China +1. When China came into WTO, the West opened to China. They said free का माल मिल रहा है, 80% लेस पे गुड्स मिल रहे हैं, प्लस पोल्यूशन उनका, प्लस बैंक्रप्सी उनकी, प्लस लेबर उनका, जेल वालों से काम करवाना, सब उनका, और मुझे तो गुड्स मिल रहा है, ले लेते हैं। They hollowed out the West. China will not allow us to take that. They are the factory of the world. They will not allow us. So we'll have to find our own way of growth. We'll not be able to substitute China.
पॉपुलेशन कम हो रही है, यस, ऑल द वर्ल्ड इज लूजिंग पॉपुलेशन, कोरिया इज द मैक्सिमम, बट उधर दूसरा देखे, मॉर्गन स्टैनली की आपने वो ह्यूमनॉइड्स की पढ़ी होगी रिपोर्ट, आज के दिन में 400 करोड़ वर्कर हैं, 4 बिलियन वर्कर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, 7-8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 4 बिलियन वर्कर्स हैं, by 2050 there will be 6 billion robots doing the work and they're getting better and better and better. तो जो पॉपुलेशन का हमें आने वाला था कि इंडिया इज 29 एवरेज, जापान इज 53, चाइना इज 45, यूएस इज 39, इंडिया ही सबसे, हम ही चलाएंगे सब कुछ, वो रोबो आके चलाने वाला है, तो वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्वेश्चन में आ गया है. नाउ यू आर सेइंग रोबोट्स, तो दे आर सच डफर्स. यू ट्राई अमेजोन में सर्विस क्वेरी ट्राई करो, बैंक तो छोड़ ही दो, बैंक तो विल डेबिट योर अकाउंट कि तुम एजेंट के पास गए कैसे. यू से तो इतने डफर्स हैं, दे आर कैचिंग अप फास्ट. तो वो एलॉन मस्क कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक वन ह्यूमन के ब्रेन का बन जाएगा एआई, and another 3 to 5 years all humanity put together से बड़ा कंप्यूटर बन जाएगा. तो बोल तो रहे हैं, अब देखो, मे बी वो बहुत चीजें बोलता है, मे बी इट्स स्टिल 20 years अवे, हमारी जिंदगी तो हो जाएगा वर्किंग लाइफ, ठीक है, बच्चों को झेलने दो. कितने बच्चे हैं अंडर 25 हियर? एनीबडी अंडर 25, अंडर 30? नो. हाँ, खड़े हो जाओ. तुम्हें एआई अंडर 30, प्लीज गेट अप, वेव कर दो क्राउड को. क्या है, क्या बूढ़े हो गए, खड़े होने में भी शर्म शर्म आ रही. सो यू आर द वंस हु विल हैंडल द एआई, आपको देखना है. सो दैट्स अबाउट इट. और कुछ, एनीथिंग आई डिडंट कवर? आई थिंक हो गया. ये तो है सर. आगे अजय जी, एक चीज बताइएगा, मेनी मेंबर्स हैव टोल्ड दैट स्मॉल कैप की रिकवरी क्या होगी, कब होगी? बहुत लोग फंसे हुए हैं. हाँ. सी नॉर्मली होना चाहिए, एंड इफ यू लुक एट अर्निंग्स ऑल्सो, स्मॉल कैप अच्छा आ रहा है वापस, बट वो वैल्यूएशन इतने हाई हो गए थे कि अभी टाइम लगेगा. सो स्टॉक मार्केट और से स्मॉल कैप स्टॉक्स रिकवरी इज डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई वी से अगर 100 रुपए डालने हैं इक्विटी में, 50 तक डाल दो लार्ज कैप, another 30 mid cap, 20 small cap. That is also aggressive. As you grow older, you should be reducing the small cap exposure. You should have enough time. Second, my feeling is we all think we are very good stock pickers. Best way to play small cap, mid cap is through the mutual fund. Let the fund manager do the work. You're paying him 1.5-2%, but वो at least 40-50 stock डालेगा सोच समझ के. नहीं तो पीएमएस, बहुत पैसा है तो पीएमएस वो तो ऑपरेट ही करके दे देगा आपको. ही विल गेट यू द प्राइस यू वांट. तो rather than looking yourself at it, so I think there is still time. We have lost huge value. और वहीं पे है ये जो इंडेक्स है, ये मैनेज रहते हैं, you know, the big guys go up. So you think निफ्टी तो उतने पे ही है, 26,400 था, वो 26,000 के पास भटक रहे हैं. बट अगर आप पोर्टफोलियोज में देखें तो मच मोर, देयर इज मच मोर डैमेज, एंड दोज आर योर स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स. सो स्टिल टाइम. लर्न दैट लेसन, डोंट ऐड टू इट, डोंट एवरेज डाउन ऑन इट, एंड पोर्टफोलियो ढंग से बनाइए किसी के साथ बैठ के हु अंडरस्टैंड्स इट. सोना होना चाहिए, चांदी होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, और कैश भी होना चाहिए. 8-10% रखिए हाथ में. कुछ अगर गड़बड़ होती है, नीचे का लेवल आता है, तो वी शुड हैव सम कैश. सो डोंट लुक एट इट कि इट्स गिविंग मी 3% रिटर्न और 5% रिटर्न. इट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वॉरेन बफेट बैठा है ना अभी भी लेके, सारी बड़ी कंपनियां इतना कैश लेके बैठी हुई हैं. सो देर इज अ वैल्यू टू कैश. 8-10% कैश रखना चाहिए कि आएगा, मौका आएगा तो तब लगा सकते हैं. दैट्स द थिंग. हो गया जी.
Thank you, Ajay ji. Thank you for giving a complete macro view in terms of not only India, but more particularly US and China. I think this is the first time that we have had an occasion at our study circle, giving so much insight on the global scenario. Extremely glad and delighted that to be enlightened on this. Friends, the second speaker that we have is Mr. Ratiraj Tibrewala. He is the Chief Executive Officer of Choice Capital Advisors. And I would request Purvi to please come forward and quickly introduce him.